بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، کیرٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک خودکش کے علاوہ 4 خوارج کو کامیاب آپریشن کر کے ہلاک کیا گیا۔ کامیاب آپریشن کے دوران کیرٹ کالج کے کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس وقت کالج کی بلڈنگ کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ وانا کیرٹ کالج میں موجود تمام طلبہ، اساتذہ اور سٹاف کو ریسکیو کر لیا گیا۔ حوصلہ مند طالب علموں نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیڈٹس کی جانوں کی حفاظت کے پیش نظر آپریشن انتہائی احتیاط سے کیا گیا۔ حملے کے وقت کالج میں 527 کیڈٹ سمیت 627 افراد موجود تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ 550 طلبہ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیاب آپریشن پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ اے پی اے سے بھی 10 گنا بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ بڑی مہارت کے ساتھ طلبہ کی جانیں بچائی گئیں۔ یہ مشکل اور حساس آپریشن تھا۔ عطا طاہر نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں کی سہولت کاری بند ہو۔ اسلام آباد اور وانا واقعے کی تحقیقات ہوں گی۔ ٹھوس شواہد دوست ممالک اور بین الاقوامی فورمز کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ بہت بڑی کامیابی ہے پاک فوج کی کہ 550 اسٹوڈنٹ کو جس طریقے سے ایویکیویٹ کیا گیا، باحفاظت نکالا گیا اور محفوظ کیا گیا، یہ تو ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے اور اس کو باقاعدہ دنیا کی ملٹری اکیڈمی میں پڑھایا جائے گا۔ جس طرح جعفر ایکسپریس ٹرین والا انسیڈنٹ پاک فوج نے بڑی مہارت سے بڑے نقصان سے جو ہے وہ قوم کو بچایا، اسی طرح یہ تو اے پی ایس سے بھی 10 گنا بڑا ایک واقعہ ہو سکتا تھا۔ بڑی ہمت حوصلے کے ساتھ، بڑی پرسیویرنس کے ساتھ، صبر تحمل سے اور بڑی مہارت کے ساتھ سکسیسفلی جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کی جانیں بچائی گئی ہیں۔ کہ ہمارا تو ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال نہ ہو اور وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری نہ کریں اور وہاں سے دہشت گردوں کو سپورٹ نہ ملے۔ تو یہ ابھی تحقیقات ہوں گی ان دونوں واقعات کی، اسلام آباد والے کی، وانا والے کی، اور اس کے ٹھوس شواہد جو ہیں وہ دوست ممالک سے بھی شیئر کیے جائیں گے۔ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، فورمز ہیں، ان پر بھی رکھے جائیں گے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہ عزم ہے پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کا، اور اس میں بھرپور طریقے سے متحرک ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان ان پلیس ہے۔ تو یہ جیسے ہی مزید شواہد اکٹھے ہوتے ہیں تو اس پہ باقاعدہ ایک لاہ عمل بنایا جائے گا۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کسی بھی ایسی دہشت گرد کی کارروائی میں جو بھی ملوث ہوگا، بھرپور جو ہے اس کا یہ دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کریں گے، ان سازشوں کو، اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ دونوں قائدین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ غیر ملکی پشت پناہی سے کام کرنے والے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی۔ ملاقات میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزراء سید محسن رضا نقوی، چودھری سالک حسین، اعظم نذیر تارڑ، خالد حسین مقصی اور عبدالعلیم خان بھی موجود تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کے بعد مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کا جواب دیں۔ پاکستان اب افغانستان کے اندر کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ دونوں واقعات افغانستان کے راستے بھارت کی ممکنہ جارحیت کا پیش خیمہ ہیں۔ ان واقعات میں افغان اور بھارتی مداخلت کے ثبوت ثالثوں کو دیں گے۔ افغان حکومت کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے ان دونوں حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور افسوس کا بھی اظہار کیا۔ کنڈیم کرنا یا افسوس کا اظہار کرنا جو ہے نا وہ سچائی کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد میں حملہ جو ہے یہ شاذیب ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیٹس ناٹ فول آور سیلز کہ جی طالبان جو ہیں وہ مخلص ہیں اور وہ ہم چاہتے ہیں اور وہ بات چیت چاہتے ہیں۔
दोनों वाक़यात जो हैं प्रील्यूड है। एग्रेशन जो है हिंदुस्तान की होगी या अफगानिस्तान के रास्ते जो है हमारे मुल्क में तुर्क हैं या कतरी हैं या ईरानी हैं, वो कुछ जमानत देंगे इन लोगों की, तो उनकी जमानत सारांकों के ऊपर वी हैव टू बेंड बैकवर्ड्स, तो वो भी हम अगर जमानत हो अमन की तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ज़बानी कलामी तो अफगानिस्तान के अंदर उन पर कोई इतबार नहीं करता काबुल वालों पे, तो हम किस तरह जो बॉर्डर के पार वाले किस तरह इतबार कर। बाज़ इन हॉट परसूट जो है हम अफगान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे हम। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस वाक़े में अफगान तालिबान की पुष्टपनाही है, भारत की सरपरस्ती है, तो ये सबूत क्या साजिशों के सामने रखे जाएंगे? जी बिल्कुल रखे जाएंगे। मेरा ख्याल है कि सालिसों के ज़हन में कोई भाव नहीं है कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है। यानी पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकता है जो पनागाहें हैं अफगानिस्तान में इन वाक़यात के बाद? जी बिल्कुल कर सकता है, उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए जो है। और साहब दूसरी तरफ नई दिल्ली में कल वाक़या हुआ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब हुकूमती सतह पर कोई इल्ज़ाम लगे या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाए जैसी पहलगाम वाक़े के बाद हुई थी? कि वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जो है इस किस्म का ड्रामा रचा के जो है दोबारा कोई एग्रेशन करने की कोशिश करें। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये अगले चंद घंटों में या कल जो है इंडिया ये भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। दोनों हमसायों को ये जो है बाउंड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैम। अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब देने, खाली नहीं जाने देंगे वार। अगर हमें निशाना बनाया गया तो वील पे बैक इन द सेम कॉइन। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने कहा है कि वाना और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मकसद अफरा तफरी फैलाना है ताकि लोग खौफजदा होकर लीडरशिप से कहें कि अफगानिस्तान के साथ सख्त रवैया ना रखें और अफगानिस्तान जो 3-4 रियायतें चाहता है वो उन्हें दे दी जाएं, मगर ऐसा नहीं होगा। आइंदा चंद दिनों में दहशतगर्द मजीद शहरों की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों का जो करना था और इस्लामाबाद में जो आम सिविलियंस को टारगेट करना था, इसका बुनियादी मकसद मुआशरे में पैनिक फैलाना। और पैनिक क्यों? कि खौफजदा होंगे लोग और अपनी लीडरशिप को ये कहेंगे कि अफगानिस्तान के साथ कोई उस तरह का रवैया सख्ती वाला ना रखें, बात करते रहें और वो जो 3-4 कंसेशंस चाहते हैं वो कंसेशंस उनको देते रहें। ये हो सकता है अगले चंद दिनों में और शहरों की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करें, और वो समझते हैं कि चंद सुसाइडल करवाने के बाद वो पाकिस्तान की लीडरशिप को रीथिंक पे मजबूर करेंगे और कहेंगे कि पुराने तरीकों से ही चलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने वाला है। अच्छा, मुझे ये पूरा पता है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इतनी है कि कौन किस जगह पे कहाँ रह रहा है, काबुल में किस घर में कौन रह रहा है इन TTP और BLA के लोगों का, और वो पाकिस्तान ने यकीनन कतर के साथ भी शेयर किया होगा, टर्की के साथ भी शेयर किया होगा, और बार वो अफगान लीडरशिप के साथ भी शेयर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान अब तक रेस्ट्रेंट इसलिए दिखा रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी हकीकतन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के साथ एक जंग हो। यहाँ TTP उस तरह नहीं कर सकती जो TTA उधर काबुल में कर सके। यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज हैं, वो कोई सुसाइड बॉम्बर देते तो उससे भेज दें, ठीक है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन वो अगर चाहते हैं कि TTP के कल को एक फौज की तरह पाकिस्तान पे हमला करके किसी इलाके पे कब्जा करके उनकी शरिया का ब्रांड नाफिज कर लेगी, तो ये कभी हो नहीं सकता। अच्छा, इंडिया और अफगानिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग एक कोलैबोरेशन चल रही है और कुछ उनके ऐसे मुआहदे हुए हैं जिसकी वजह से ये अज्यूम किया जा सकता है कि हो सकता है कि ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया ईस्ट से और अफगानिस्तान वेस्ट से कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करें। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असेंबली में मंजूरी के लिए पेश कर दी गई है। तरमीम पर बहस का बाकायदा आगाज हो गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा है कि इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम से विफाक मुस्तहकम होगा। 28वीं आईनी तरमीम में वो चीज़ें शामिल होंगी जो इस तरमीम में रह गई हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जब हमारा मर्द अहन जेल से निकला तो ये आईनी अदालतें ख़त्म कर देंगे। कौमी असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे फिर होगा। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। 184 को जब डिस्कस किया, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं और जिसे सुन के अच्छे खासे लोग जो है उनके पसीने जारी हो जाते हैं कि वो एक ऐसा अफरीद के तौर पे हमारे अदालती निज़ाम में आया कि उस सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वजीर आज़म हो गया, कभी कोई सरकारी मुलाजम हो गया, कभी कोई
اداکار یا اداکارہ ہو گئے اور کبھی ملک کی یا معاشی نظام ہی بٹھا دیا سوو موٹو نے۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم پاس کرائی ہے، لوٹوں سے بنی ترمیم عوام کی خدمت نہیں کر سکے گی۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باکو میں بیٹھ کے وہ اپروول کرا رہا ہے، اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی صدور کو استثنا حاصل ہے۔ I take offense to this جملہ بار بار ایک باکو ترمیم۔ So what is this؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایوان میں کہا کہ 28ویں آئینی ترمیم میں وہ چیزیں شامل ہوں گی جو اس ترمیم میں رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم سے وفاق مستحکم ہوگا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم میں بلدیاتی اداروں سے متعلق معاملات طے کیے جائیں گے۔ کچھ معاملات پر پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے اعتراضات دور کر کے ہی ترمیم لائی جائے گی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے عمیر نیازی نے کہا کہ اس معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لڑائی ہوگی۔ 27ویں کے بارے میں تو سب قوم جان چکی ہے، کیا اب 28ویں جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ پاکستان کو چلانے کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے اس بات کا قوی امکان ہے۔ اور میں کیوں بھی کہہ رہا ہوں، پورے پنجاب کی اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر، جہاں پہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پارٹیز ہیں، سب نے جو ہے وہ ترمیم پاس کر دی کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ پوری فیڈرل کیبنٹ وزیر اعظم کے ساتھ سب نے جو ہے وہ اپروو کر دیا۔ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض ہے، ہم ان سے بھی بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو لوکل گورنمنٹ کی ترامیم لانا پڑے۔ تو اگر 18ویں ترمیم جو ہے اس میں طے شدہ چیزوں کو 28ویں ترمیم میں واپس لانے کی کوشش ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پھٹا ہو جائے گا، پھر آپ کی حکومت کیسے چلے گی؟ جو بھی بات ہوگی وہ تو آپس میں گفت و شنید اور طے ہو کر ہی وہ بات ہوگی۔ دیکھیں ابھی کانفلکٹ تھا نا، تو نہیں آئی نا، جو وہ چیزیں پھر ڈراپ کر دی گئی نا۔ میں سمجھتا ہوں آگے جا کر بھی کوئی پھڈا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی۔ جہاں اتنے ڈیپ روٹڈ انٹرسٹ ہوں، جہاں ڈائنیسٹیز کی سروائیول کی بات ہو، نہیں وہ سپیس دیں۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کے بعد آج اسلام آباد کی عدالتوں میں مکمل ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ دھماکے میں 12 افراد شہید اور 30 زخمی ہو گئے تھے۔ اس پر اپڈیٹ لیں گے جیو نیوز کی نمائندہ مریم نواز سے۔ مریم، کیا اپڈیٹ ہے؟ آج ساری عدالتیں مکمل طور پر بند رہیں گی؟ جی بالکل، آج اسلام آباد کچہری جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ کسی بھی طرح کے مقدمات کے لیے سائلین کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت اسلام آباد کچہری کے چاروں اطراف پر جو ہے وہ سیکیورٹی موجود ہے، اور گزشتہ روز جہاں پر دھماکہ ہوا جائے وقوع پر، وہاں پر بھی جو ہے وہ مکمل کناتے لگا کر راستے کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر پولیس کے جو ہے وہ مختلف افسران موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی جائے وقوع پر جانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ فورینسک ٹیم موجود ہے جو جائے وقوع کا جائزہ ایک مرتبہ پھر سے لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سائلین کی بڑی تعداد جو ہے وہ عدالت کی بیک سائڈ پر موجود ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج جو ہے وہ عدالتیں نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز جب 12:35 پر خودکش دھماکہ اسلام آباد کی کچہری میں ہوا، کچہری کے دروازے پر ہوا، تو اس کے نتیجے میں 12 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے اور 36 جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور ان 36 جو زخمی ہیں ان میں سے کچھ کو جو ہے وہ ڈسچارج بھی کیا گیا، اور جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس کے اندر وکلا کو آج مکمل طور پر منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پر نہ آئے۔ گزشتہ روز ایک وکیل کی جو ہے وہ جاں بحق ہونے کی اطلاع آئی اس دھماکے کے نتیجے میں، جس کے بعد جو ضلع کچہری ہے جو ایک کچہری ہے اس کے اندر وکلا نے 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا، اور اس کے علاوہ مکمل ہڑتال بھی آج ہے، اور اس کے ساتھ ہی کسی کو بھی کچہری میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ 36 جو زخمی تھے پمڈ اسپتال میں، ان میں سے کئی کو ڈسچارج بھی کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ابھی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 12 افراد جو ہے وہ انہی کی شہادتیں، دیگر کچھ 4 افراد جو ہے وہ کریٹیکل تھے، لیکن وہ فی الوقت اسپتال میں ہی مقیم ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں سری لنکا کو 6 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 299 رنز بنائے۔ آل راؤنڈر سلمان علی آغا 105 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ حسین طلعت نے 62 رنز بنائے۔ سری لنکن ٹیم مقررہ اوورز میں 9 وکٹ پر 293 رنز بنا سکی۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں اوپنر سائم ایوب 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ فخر زمان نے 32 اور بابر اعظم نے 29 رنز بنائے۔ محمد رضوان 5 رنز بنا سکے۔ 95 پر 4 وکٹیں گرنے کے
بعद सलमान अली आगा और हुसैन तलत ने 138 रन की शराकत लगाई। हुसैन तलत 63 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने सेंचुरी बनाई। मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 23 गेंदों पर 36 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर 299 तक पहुंचा दिया। सलमान अली आगा 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हसरंगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में श्रीलंकन ओपनर्स कमल मिश्रा और निसांगा ने पहले विकेट पर 85 रन बनाए। हारिस रऊफ ने कमल मिश्रा और कौशल मेंडिस को लगातार गेंदों पर आउट किया। समारा विक्रमा 39 और निसांगा 29 रन बनाकर आउट हुए। हसरंगा ने 59 रन की इनिंग्स खेली लेकिन वो टीम को फतह ना दिला सके। श्रीलंकन टीम 9 विकेट पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने मैच 6 रन से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। टर्किश फुटबॉल फेडरेशन का क्रैकडाउन। जुआ स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में 1024 फुटबॉलर्स को मुअत्तल कर दिया। फुटबॉलर्स को प्रोफेशनल फुटबॉल बोर्ड डिसिप्लिनरी की निशानदही पर मुअत्तल किया गया है। टर्किश फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक जिन खिलाड़ी को मुअत्तल किया गया है वो खेल में शर्त लगाने वालों में शामिल थे। उनमें 27 खिलाड़ी वो हैं जो टॉप फुटबॉलर्स में हैं। इन तमाम खिलाड़ियों की तहकीकात करने वाले प्रोफेशनल फुटबॉल डिसिप्लिनरी बोर्ड के कहने पर मुअत्तल किया गया है। इस अमल के नतीजे में टर्किश फुटबॉल की 3rd और 4th डिवीजन के मैचेस 2 हफ्ते के लिए मनसूख कर दिए गए हैं। ताहम 1 और 2 डिवीजन के मैचेस जारी रहेंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन और पैडल एशिया को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करते हुए पैडल को एशियन गेम्स में शामिल करने की खुशखबरी सुना दी है। 2032 के ओलंपिक्स गेम्स में भी पैडल के खेल को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन के अलामिये के मुताबिक ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पैडल को एशियन गेम्स में शामिल करने पर इत्तफाक किया गया और साथ ही ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने पैडल की इंटरनेशनल बॉडी FIP और पैडल एशिया को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन के सदर लोइजी कारारो के मुताबिक इस फैसले से न सिर्फ एशिया बल्कि आलमी सतह पर पैडल के फरोख्त में अहम पेशरफ्त होगी। यूरोपियन गेम्स 2023, साउथ अमेरिकन गेम्स 2022 के बाद अब एशियन गेम्स में शमूलियत इस खेल के ओलंपिक सफर में बड़ा कदम है। तहसील समानी के नवाही इलाके गढ़ा सलहरिया का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। टूटा फूटा फर्नीचर, बोसीदा कमरे, बिजली और 4 दीवारी के बगैर स्कूल में बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं समानी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी इसाक। तहसील समानी के नवाही इलाके गुड़ा सुलेरिया में 2 कमरों पर मुश्तमिल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंडरात का मंजर पेश करने लगा। स्कूल बिजली, फर्नीचर और 4 दीवारी से महरूम। एक कमरे की छत जमीन बोस हो चुकी जबकि दूसरा कमरा बारिश में टपकता है। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल को जाने वाली सड़क भी नाकाबिले इस्तेमाल। शहरियों ने हुकूमत से स्कूल की हालत बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। जिस टाइम बारिश आती है ना, बच्चों को छुट्टी हो जाती है, ये जो छत है ना वो लीक हो। गवर्नमेंट से ये मुतालबा है और हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए, हमारा रास्ता होना चाहिए और 4 दीवारी होनी चाहिए। शहरियों का मजीद कहना था कि हमारे बच्चों को बेहतर तदरीसी सहूलियात फराम की जाए ताकि वो बेहतर माहौल में तालीम हासिल कर सके। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर इसाक चौधरी, जियो न्यूज़, समानी, आज़ाद कश्मीर। चिन्योट की तहसील भवाना में गन्ने के काश्तकारों का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। किसानों ने गन्ने की कीमत मुकर्रर न होने और नाजायज कटौतियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत से फौरी रेट जारी करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे मुर्तजा चमन। जिला चनियोट की तहसील भवाना में गन्ने के काश्तकारों का बड़ा कन्वेंशन मुनक़िद हुआ जिसमें तहसील भर से किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। किसानों का कहना है कि गन्ने का कृषिंग सीजन तो शुरू हो चुका है लेकिन हुकूमत पंजाब ने दूसरी बार भी गन्ने की कीमत मुकर्रर नहीं की। जिला चनियोट के किसानों ने छिलाई का बाइकाट किया और इसका मेन वजह जो है वो आपके सामने के मार्केट में इस वक्त चीनी का रेट 220 रुपए किलो तक पहुंच चुका है जबकि किसान का गन्ने का जो रेट है वो मुसलसल 300 रुपए। काश्तकारों ने इल्जाम आयद किया है कि शुगर मिल नाजायज कटौतियां कर रही है और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने किसान को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। उनका कहना है कि खाद, ज़रियात और डीजल महंगा जबकि गन्ने और दीगर फसलों की कीमतें न होने के बराबर रह गई हैं। हमारा यही मुतालबा है कि गन्ने का जो रेट है वो 600 रुपए पर मन किया जाए और इसे सरकारी तौर पर अनाउंस किया जाए। किसानों का कहना है कि अगर मुतालबात न माने गए तो आइंदा लाहेअमल पंजाब भर में एहतजाज की सूरत में अपनाया जाएगा। मुर्तजा चमन, जियो न्यूज़, चनियोट। सर्दी की आमद के साथ ही रज़ाइयाँ बनाने के कारोबार में इजाफा हो जाता है। कबीरवाला में रिवायती और मशहूर तरीके से आज भी खूबसूरत रज़ाइयाँ बनाई जाती हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फारूक रजा। सर्दी के दस्तक के साथ ही कबीरवाला में रजाइयां बनवाने का सिलसिला तेज हो गया।
शहरी पुरानी रजाइयों को नया कराने के साथ साथ नई रुई से नई रजाइयां तैयार कराने में मसरूफ हैं। रजाइयां बनाने का सबसे रवायती और मशहूर तरीका आज भी पेंजा पर बनवाना है, जहां रुई को पीट पीट कर नरम किया जाता है और हाथ से रजाई में भरा जाता है। ये रवायत न सिर्फ सर्दियों में गर्मी का सामान है, बल्कि दही दस्तकारी का खूबसूरत नमूना भी। सर्दियों के आगाज से हम पुरानी रजाइयों को पेंजे पर लाकर दोबारा भरवाते हैं और शादी ब्याह के लिए रंग बिरंगी न्यू रजाइयाँ भी खरीदते हैं ताकि सर्दियों से बच सके। रजाई बनाने वाले कारीगरों का काम इन दिनों अरूज पर है। लोग अपनी पुरानी रजाइयों पर नया कवर लगवाकर दोबारा काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम सरमा की आमद से ही लोग हमारे पास रजाइयाँ लेके आते हैं, अपनी पुरानी रजाइयाँ उनको नया करवाने के लिए, पिंजाई करवाने के लिए, सिलाई करवाने के लिए, और शादियों का रश है उसकी वजह से भी लोग शादी के लिए अपनी रजाइयाँ, गद्दे, पिंजाई, भराई, सिलाई करवाने के लिए हमारे पास आते हैं। वक्त के साथ साथ सर्दी में कंबल का इस्तेमाल भी बढ़ा, लेकिन जाड़े की रातों में नर्म और गर्म रजाइयों को ओढ़कर सोने का रिवाज अभी तक बरकरार है। सर्दियों की आमद के साथ ही रजाइयाँ बनाने का सिलसिला तेज तर हो गया है। ये रजाइयाँ अब भी सर्दी से बचाव का जरिया और दही हुनर की पहचान है। कैमरा टीम के साथ सैयद फर्रुख रजा, जियो न्यूज कबीरवाला। गुजरात शहर और गिरदनवा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 245 कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसके बाद जराइम की शरह में कमी की उम्मीद है। तफसील बताएंगे राजा रियाज अहमद रासिख। जी, मैं इस वक्त सेफ सिटी प्रोजेक्ट गुजरात में मौजूद हूँ। यहाँ डीपी ऑफिस में ये तमाम कैमरे लगे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पूरे गुजरात के और जिला भर के जो कैमरों की यहाँ मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे इस वक्त सेफ सिटी प्रोग्राम के इंचार्ज DSP जो नवाज साहब मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि ये सेफ सिटी का क्या मकसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ सिटी का फ़ायदा ये है कि जो भी बंदा क्राइम करेगा फ़ौरन पकड़ा जाएगा। ये शहर में 245 कैमरे लगे हुए हैं जो 24 आवर चल रहे हैं। सेफ सिटी में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जी, वो में सेफ्टी ऐप है, ब्लड बैंक है जी, वर्चुअल वो में पुलिस स्टेशन है जी, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस स्टेशन है। वो 15 पर कॉल करके 2 का बटन दबाएंगे, फ़ौरन लेडी पुलिस का रब्ता हो जाएगा। जी, जिस तरह ये DSP साहब ने बताया कि यहाँ पे सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें लोगों को फ़ायदा है कि उनकी जो वारदात होती है फौरी तौर पर ट्रेस हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ई चलानिक और दूसरी सहूलत भी मौजूद है। जी, सक्खर में मुर्गी की गोश्त की कीमतों में कमी के बाद एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। गोश्त फी किलो 570 रुपये में फरोख्त होने लगा है। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर की मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमतें रवा साल जो अपनी कम तरीन सतह पे थी 450 रुपये फी किलो गोश्त फरोख्त हो रहा था। 3 रोज पहले से इसकी कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं और आज ये 570 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। 120 रुपये फी किलो का 3 रोज में इजाफा हुआ है, जबकि ताजरों का कहना है कि आइंदा चंद रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। जिंदा मुर्गी की बात की जाए तो 390 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह देसी मुर्गी 900 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। ताजियों का कहना है कि जैसे जैसे सर्दियों में इजाफा होगा मुर्गी के गोश्त की कीमतें भी मुसलसल बढ़ेंगी। जी।